Maliwal arrives to record her statement. Swati Maliwal's statement is to be recorded before a magistrate, as we've been telling you. So Swati Maliwal today will be recording her statement before a magistrate. She recorded her statement before the Delhi police. She gave them a written complaint yesterday, basis which they filed an FIR in this case, naming Bibhav Kumar as the accused in this case. Now Swati Maliwal, as is protocol, has reached a magistrate's residence in order to record her statement under Section 164 CRPC. So she will be recording her statement and narrating what she alleges happened with her at the Chief Minister's residence on the 13th of May morning. Some very serious charges that she seems to have levelled against Bibhav Kumar when recording her statement with Delhi police last evening. Now she has gone ahead and recorded her statement. She is in the process of recording her statement before a magistrate. Now, the BJP is gunning for Arvind Kejriwal. Top BJP netas are accusing the Delhi Chief Minister of shielding his personal assistant, his close aide Bibhav Kumar, the man accused of assaulting AAP MP Swati Maliwal at the Chief Minister's residence. They criticize Kejriwal's silence on the matter, accusing him of giving a free pass to Bibhav Kumar. BJP has also pointed out that Kumar was seen with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on his campaign trail in Lucknow. Meanwhile, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra, an ally of the Aam Aadmi Party, condemned the incident and called for appropriate action. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this. And in utter disgust, I am shocked that the Chief Minister has not even spoken about it. स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेन दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था, अरविंद केजरीवाल कहा था, केजरीवाल अभी एक क्रिमिनल बन चुका है। ये आज का स्वाति मालीवाल का ट्वीट से इसको दोबारा पुष्टि मिलती है। अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात FIR में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। कोई भी औरत के साथ छेड़छाड़ होना एक तो खतरनाक भी है और होना नहीं चाहिए। इट्स हॉरिबल। या हम लोग जीरो टॉलरेंस करते हैं उसके लिए। मुझे लगता है केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दें। मुझे लगता नहीं है कि अब उनके लिए किसी भी तरह से ये जायज़ या सही होगा कि वो उस कुर्सी पे बैठे रहें। शीश महल के सुल्तान साहब ना तो करोड़ों के अपने लिए बंगले बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी ही साथी और एक महिला के साथ मार पिटाई कराई है, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई भी औचित्य है उनका वहाँ पे बने रहने का। तो ये ना समझे कि विभव ने किया है, ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। उनके आदेश पर, उनके कहने पर विभव ने ये हाथापाई, ये बदसलूकी और बदतमीजी की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। आप उन्नाव के बारे में, उन्नाव की बेटी के बारे में बात करती थी। आपने लगातार निर्भया से लेकर तमाम बारी मसला ये उठाया, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, शोषण को लेके, और अभी जो है स्वाति मालीवाल को लेके आम आदमी पार्टी में एक बड़ा हड़कंप
चल रहा है कि, और ये भी सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेता, खासतौर से प्रियंका गांधी जो महिला सुरक्षा के लिए बोलती हैं, एक राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता होती है, जिसमें संजय सिंह भी बोलते हैं कार्रवाई होगी। आज भी जो जिन पर आरोप लगा है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल के साथ। तो आपको लगता है कि साझा, उन्होंने, सॉरी क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार उन्होंने दिल्ली पुलिस में भी कॉल की थी और वो राज्यसभा की सांसद है, सीएम आवास में ये होता है। तो बतौर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर के तौर पे आपको लगता है? सबसे पहले किसी भी महिला के साथ अगर अभद्र व्यवहार हो, कोई भी अत्याचार हो, तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हूँ और बोलूंगी। और मैंने ये, चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है, चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कहीं और, तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले। लेकिन भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं? हाथरस में जो हुआ, उस लड़की को जलाया गया, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये भाजपा की सरकार का काम था। उन्नाव में जो हुआ, भाजपा की सरकार ने किसका पक्ष लिया? मदद किया उस लड़की को जो ओलंपिक की महिला थी, मेडल जीत के आती हैं तो मोदी जी के घर जाती हैं, मोदी जी चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूरा भाजपा बोलता है मोदी जी है तो मुमकिन है कि मेडल मिल रहा है। फिर वही लड़की कुछ कहती है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। मतलब ये कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में मंच पे खड़े हैं, इनके साथ वोट मांग रहे हैं, और जब इतनी बड़ी चीज होती है वो आदमी निकल जाता है देश से, और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। ये कहा जा रहा है कांग्रेस कर्नाटका पे बोलती है, इस पे नहीं बोलती है। मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि जहां भी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, अगर हुआ है, अगर सही मायने में ऐसा हुआ है, तो उस महिला के पक्ष में मैं खड़ी हूँ और उसका साथ देती हूँ। मैं चाहे किसी भी वो किसी और पार्टी में है, वो बात करना चाहेंगी तो मैं करूंगी, लेकिन उसकी पार्टी तय करेगी उसके लिए। और मेरे ख्याल से अगर केजरीवाल जी, अगर ऐसा हुआ है और केजरीवाल जी को मालूम है इस चीज के बारे में अभी, क्योंकि स्वाति जी ने बोला, तो आई एम श्योर कि केजरीवाल जी सही कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कुछ वो सोल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब जो स्वाति जी के